Good evening, everyone. Good evening, Shalini ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Vicky sir. How are you all? And how's your preparation? Good evening. Good evening. Any doubt in previous session? Any doubt? In the last session, we have started the concept of C programming. So any doubt? और आपने आज का mock test दिया? Morning जो mock test था, it was daily mock test. It was based on the C programming. Whatever concept we have discussed in the previous session, वही हमने mock test में लिया था. Good evening, Vishal sir. Good evening. Let me know any doubt in the previous session. Vicky sir, Shalini ma'am. चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन. नो डाउट. Okay, so today we will continue the topic that is your constant. ठीक है, constant. So देखिए, in the last session we have seen कि constant is a value that cannot change during the execution of program. ठीक है, जो program के execution में change नहीं होगा. So हमने देखा था we have integer constant. Integer constant is classified in three types. First is called the ordinary decimal number, second is the octal number, third is the hexadecimal number. So ordinary number was the base 10, octal have base 10, octal have base 8. ठीक है, गलत लिखा, it have base 8 and it have base 16. ठीक है, and जो octal number है in C programming it start with 0 and in hexadecimal number start with 0x or small x. Okay, so this is what we have integer constant. After integer constant हमने discussion किया था floating point constant. Floating point constant can be represented in two way. First is called the decimal notation and another is called the exponential notation. ठीक है, decimal notation and exponential notation ये हमने देखा था. Then हमने देखा था we have character constant. So character constant is encoded within a single quotes. ठीक है, कहाँ लिखते हैं आप? Within the single quote. Now in the character constant we have a special sequence that is called the escape sequence. Escape sequence are the constant जो हमको that is used for the formatting purpose. ठीक है, जिसको आप क्यों use करते हो? For the
formatting purpose. So escape sequence discuss किया था. Now we have one more type of constant that is called the enumeration constant. ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, enumeration constant. So concept को ध्यान से समझिएगा. Now what we are going to do, we are going to make a meaning, we are going to assign a meaningful name to the constant. ठीक है, हम एक मीनिंगफुल नेम असाइन करने वाले हैं टू द कांस्टेंट वैल्यू. फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव 7 days इन अ वीक. ठीक है, आपको पता है कि वी हैव 7 days इन अ वीक. सो वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू ना, वी कैन असाइन सम न्यूमेरिक वैल्यू टू दिस डे. ठीक है, मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मंडे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 1, ट्यूसडे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 2, वेडनेसडे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 3. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मंडे आई कैन यूज 1, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्यूसडे आई कैन यूज 2. और लाइक आप इसको अपोजिट भी बोल सकते हो कि लाइक यू हैव जनवरी. So for January, I have the month 1. So if I will write Jan, it will give me the value of 1. है ना. तो enumeration क्या है? It is nothing. It is a convenient way to associate constant integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the constant integer, a meaningful name. 1 को नेम असाइन कर दिया मंडे, 2 को नेम असाइन कर दिया ट्यूसडे, 3 को नेम असाइन कर दिया वेडनेसडे. सो कांस्टेंट इंटीजर को वी आर असाइनिंग अ मीनिंगफुल नेम, then it is called the enumeration. Now remember, enumeration is user defined type. enumeration का जो टाइप होता है वो कौन डिफाइन करता है, दैट इज यूजर. लाइक आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल ऑफ डे. it could be related to the month, it could be related to the color, it could be related to the डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, है ना. सो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का इनुमरेशन करना चाहते हो, आप किस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लिए इनुमरेशन करना चाहते हो. सो एन इनुमरेशन इज यूजर डिफाइंड. ठीक है, यूजर डिफाइंड होता है. एंड वैल्यूज की जो रेंज होती है, value ranging over the finite set of identifier called the enumeration constant. So we have finite number of constant here. Infinite नहीं, finite number of constant. और इनको आप क्या बोलते हो, enumeration constant. So see, यहाँ कुछ properties हैं that we should discuss about the enumeration. Enum is a keyword that we use for creating the enumeration constant. Enum क्या है? Enum is a keyword that we use to declare the enumeration constant. Color is the constant that we are creating here. ठीक है, जो क्लास आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो, जो enumeration आप डिफाइन कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया, कलर. Now color have 3 different value, red, blue or green. Color could have 3 different value, red, blue and green. ठीक है. Now by default, ठीक है, हुआ क्या, when we are writing this line, what is happening, it defining the color as a new data type with the 3 values red, blue and green. ठीक है, 3 न्यू वैल्यू होगी, एक नया enumeration data type create होगा. The name of the new data type is color and it have the 3 value red, blue and green. By default the integer constant जो red से associated होगा, by default the integer constant that is associated with red is 0. Integer constant that is associated blue is 1. The integer constant that is associated with green is 2. Got it? समझ में आया है ना. तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा, एक नया डेटा टाइप तैयार हो रहा है, a new data type we have. ठीक है. So like what we are doing now, it is a data type, color is a data type. हम क्या बार बार बोल रहे हैं, it is a data type. So I can create the variable of this type, है ना. मैं इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ. सो आई एम राइटिंग कलर C. नाउ दिस इज व्हाट, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कलर. फिर व्हाट वी कैन डू, यदि आपने लिखा C इक्वल टू ब्लू, नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ C. C की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इफ आई विल प्रिंट एज %d, इट विल गिव मी द वैल्यू 1. ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 1. गॉट इट, समझ में आया. ठीक है. इफ आई विल राइट C इक्वल टू रेड,
if I will write c equal to red, then please let me know what will be the value. भाई c के वैल्यू क्या होगा यदि c इक्वल टू आप रेड कर दोगे तो? हाँ, यस, वेरी गुड श्रेया मैम। भाई क्या हुआ, नहीं समझ में आया? What if I will write green? If I will write green? What if I will write green? तब वैल्यू क्या आएगी? Shalini ma'am, what will be the value? Vicky sir, विशाल सर, what will be the value यदि आप C में, ठीक है, यदि आप C में असाइन कर रहे हो? हाँ जी, विक्की सर, शालिनी मैम, ठीक है। सो व्हेन वी वर्किंग विद द enum, देखिए लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, हाउ वी आर राइटिंग। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हेयर वी हैव मेन फंक्शन, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इनम। इनम क्या कर रहा है? इट इज असाइनिंग नेम टू द इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5। सो इट इज असाइनिंग नेम टू द इंटीजर कांस्टेंट। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग इनम, इनम कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं। कलर इज अ न्यू डेटा टाइप। कलर की जगह मैं दे सकती हूँ व्हाट वी से रंग, ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ? रंग। इन सो देखिए, क्या ये भी वर्क करेगा? यस, इट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है, ये भी वर्क करेगा। द इनम, इट इज अ
आइडेंटिफायर, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आपका आइडेंटिफायर है. इट इज नाउ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ठीक है, ये जो कलर आप लिख रहे हो, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. नाउ यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो एंड कैन असाइन द वैल्यू. सो जब आपने ब्लू असाइन किया, द वैल्यू इज 1, रिजल्ट क्या आ रहा है 1. व्हेन वी विल असाइन ग्रीन, ठीक है, यदि हम यहाँ ग्रीन असाइन कर दें, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट इट विल बी 2. तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम 0. ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन सभी को, स्टार्ट होता है फ्रॉम 0. नाउ सी आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू. सपोज आई एम असाइनिंग 11 टू द रेड. यदि हम रेड में 11 असाइन करें, सो अब बताइए व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है, क्या मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, कैन आई चेंज द वैल्यू. सो इफ आई विल असाइन 11 टू द रेड, सो देखिए क्या होगा, आउटपुट क्या होगा. नाउ कलर इज सी, अगेन सेम प्रोग्राम है आपका. ठीक है, कलर इज सी एंड नाउ any prediction, what will be the answer, any prediction. I can, ठीक है, constant can be explicitly specified. constant value आप explicitly change कर सकते हो. the constant value can be explicitly specified. so if I am assigning 11 to the red, value of blue will become 12. very good Vishal sir. and green will become 13. रन करें, देखिए अब आउटपुट क्या बन रहा है, द आउटपुट इज 13. ठीक है, ये आपका क्या है, इट इज योर 13. सो रिजल्ट क्या हो गया आपका 13. गॉट इट, समझ में आया है ना. नाउ सपोज व्हाट इफ आई विल राइट 11 इज आल्सो ब्लू एंड सॉरी 11 इज रेड एंड 11 इज ब्लू बोथ. क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला कि नाउ रेड इज आल्सो 11 एंड ब्लू इज आल्सो 11. ठीक है, रेड इज ऑल्सो 11 देन ब्लू इज ऑल्सो 11, देन व्हाट विल बी द आउटपुट. ठीक है, आउटपुट चेक करिए, एनी प्रेडिक्शन. देखिए ओके, देखिए सर हो क्या रहा है कि बाय डिफॉल्ट, है ना विकी सर, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू, हम क्या करना चाहते हैं कि लाइक हमारे पास कुछ इंटीजर नंबर्स हैं, वी हैव सम इंटीजर कांस्टेंट एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, तो वी वांट टू असाइन देम सम मीनिंगफुल नेम, है ना, मैं मीनिंगफुल नेम देना चाहती हूँ. तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द एनुमरेशन. सपोज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटीजर वैल्यू, रेड क्या है, ब्लू क्या है, ग्रीन है, सो रेड विल स्टार्ट विद 0. नाउ व्हाट आई वांट कि रेड जब भी मैं 11 बोलूं, तो जब भी मैं 11 बोलूं, द रेड शुड बी, या रेड जो होगा इट शुड रिप्रेजेंट 11. सो ब्लू क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट शुड रिप्रेजेंट 13. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू विल बी 12, ग्रीन विल बी 13, है ना. रेड इज 11, ब्लू इज 12 एंड ग्रीन इज 13. गॉट इट. तो आई कैन रेंडमली असाइन द नंबर, मैं इसको कोई भी रेंडम वैल्यू असाइन कर सकती हूँ. आई कैन असाइन द रेंडम वैल्यू. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा. यदि मैं यहाँ रेड ही लिख लूं, ठीक है, रेड लिख लूं, तो और समझ में आएगा कि वट एवर नंबर आई वॉन्ट आई कैन असाइन. ठीक है, तो अब रेड की वैल्यू क्या हो गई है, 40 हो गई है. सपोज आई वॉन्ट ब्लू एज 40 एंड रेड एज 40. विक्की सर क्लियर है. ठीक है, so constant value can be explicitly specified for the identifier when the value of one identifier is specified the manner, the value to the next element will be the higher than this. है ना, ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, इट इज रिलेटेड टू द इनुमरेशन. यदि आपने, ठीक है, देखिए ये तो क्लियर है, ये तो हम लोगों ने करके देख लिया प्रैक्टिकल. अब ये क्या बोल रहे हैं कि नाउ द कांस्टेंट वैल्यू कैन बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड. एक्सप्लिसिटली मतलब रेड को हमने 10 असाइन कर दिया, रेड को 40 असाइन कर दिया. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ब्लू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रीन. सो इट विल बी इन द कंटिन्यूटी, है ना. ब्लू क्या बन जाएगा, ब्लू विल बिकम 12 एंड ग्रीन विल बिकम 13. ग्रीन विल बिकम 13. ओके, तो इतना तो हमको समझ में आया. नाउ सी, यदि मैं ऐसा कर दूं, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ रेड इज ऑल्सो 40 एंड ब्लू इज ऑल्सो 40. रेड इज ऑल्सो 40, ब्लू इज ऑल्सो 40. तो क्या ये आपको एरर देगा और इट विल वर्क. ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन असाइन द टू डिफरेंट नेम टू द सेम कांस्टेंट इंटीजर. ठीक है, सो रन करके देखते हैं. यहाँ here I am printing the value of red. ठीक है, here I am printing the value of red. So when you will run it,
ओ इट इज वर्किंग। और रेड की वैल्यू कितनी आई 40, रेड की वैल्यू कितनी आई 40। चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, यदि आपने ब्लू लिखा क्या ये वर्क करेगा, एरर नहीं है, ऑब्वियसली इट विल वर्क। सो अगेन द वैल्यू विल रिमेन 40। सो नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, समझ में आया ये कि यस आई कैन हैव टू name for a single integer constant. I can use them alternatively. जब मुझे red use करना है I will use red, when I want to use blue I will use blue. Both are representing the value 40. ठीक है, both are representing the value 40. What about green? green का value कितना होगा, please answer me. What about green? What will be the value of green? ठीक है, green का value कितना बनेगा, what will be the value of green? चलो शाली मैम वापस आ गए हैं। सो यस इट विल बी 41। वेरी गुड मैम, इट विल बी 41। गॉट इट एवरीवन, कैसे आया, हाँ जी वेरी गुड, इट इज 41। ठीक है, ग्रीन का वैल्यू क्या हुआ 41। डन, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नाउ आई कैन यूज देम अल्टरनेटिवली, आई कैन यूज देम अल्टरनेटिवली, है ना, हम उनको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। नाउ सी, नाउ अब आपसे क्या बोल रही हूँ कि सपोज दिस इज 40। ठीक है, मैं इसको 40 या इसको रहने देते हैं। नाउ ब्लू इज 40, नाउ रेड। अच्छा अब बताइएगा आउटपुट क्या होगा इफ आई एम राइटिंग रेड हेयर, यदि हम यहाँ रेड लिख दें तो आउटपुट क्या बनेगा इफ वी हैव, ठीक है हमने रेड इनिशियलाइज नहीं किया बट ब्लू इनिशियलाइज किया है, क्या एरर आएगा और इट विल गिव मी सम आउटपुट, और इट विल गिव मी सम आउटपुट। एरर होगा और इट विल गिव मी सम आउटपुट। ठीक है, सो हाँ क्या होगा भाई, रन करके देख लें। यस आंसर इज जीरो, जीरो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट इनुमरेशन है इट इज जीरो। एंड इफ आई विल राइट हियर ग्रीन देन व्हाट विल बी द आउटपुट, अब क्या आउटपुट बनेगा ग्रीन का, व्हाट विल बी द आउटपुट, enum red is 0, blue is 40, green is, ठीक है ग्रीन क्या होगा, व्हाट विल बी ग्रीन, हाँ ग्रीन, अब आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इन दिस केस ग्रीन इज अगेन बिकमिंग 41, whatever value is preceded, ब्लू क्या है 40 है, सो ग्रीन विल टेक 41, है ना, प्रीवियस वैल्यू क्या है 40 है, सो इट विल टेक 41। सपोज आई एम असाइनिंग 34 हेयर, अब रिजल्ट क्या होगा, एरर आएगा या फिर जीरो आएगा, 40 होगा और 34 होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, विक्की सर आंसर करिए, रॉन्ग राइट वॉट एवर इट इज। ठीक है, सो इफ आई विल एग्जीक्यूट 34, यस रिजल्ट क्या है 34 है, रिजल्ट क्या है 34। हाँ आर यू गेटिंग, ठीक है, होता क्या है कि वी आर असाइनिंग सम नेम, हमने 34 को ग्रीन नेम असाइन कर दिया, वी हैव असाइन 40 टू द ब्लू एंड 0 इज रेड, ठीक है 0 इज रेड। सो वी हैव 3 कंक्लूजन, ठीक है आपके 3 कंक्लूजन बनते हैं। फर्स्ट इज दिस वन कि आई कैन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड द आइडेंटिफायर, आई कैन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड द आइडेंटिफायर। नाउ इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, व्हेन वी असाइन द वैल्यू एक सीक्वेंस में लेता है, ओके ये मैं यही बता चुके हैं आपको, ठीक है। नाउ सी, नाउ इन द सेम प्रोग्राम विशाल सर इट विल रिमेन रेड 0, ठीक है रेड विल रिमेन 0, रेड रेड चेंज नहीं होगा, रेड विल रिमेन, ठीक है रन कर लेते हैं, रेड विल रिमेन 0,
ठीक है। यस एग्जैक्टली मैम, ठीक है शालिनी मैम। बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू, ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट असाइनिंग ए वैल्यू एनी वैल्यू, सो बाय डिफॉल्ट ये क्या बनता है आपका, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज इनिशियलाइज विद 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 1 एंड सो ऑन। सो ब्लू इज 2, ग्रीन इज 0 1 एंड 2, है ना। इफ वी आर असाइनिंग सम वैल्यू, ठीक है, हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, सो इट विल टेक दैट वैल्यू, सो रेड विल रिमेन 0। यदि हम ब्लू प्रिंट करेंगे, सो ब्लू विल बी 43, ब्लू विल बी 43, ठीक है। यदि आप वापस रेड को ट्राई करो, सो रेड विल रिमेन 0 क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया है, रेड विल रिमेन 0। इफ आई एम असाइनिंग ग्रीन, ठीक है, इफ आई विल राइट ग्रीन और I have initialized blue, so now green will take next number 44, next number 44, and suppose I am assigning all three with this with the different number, यदि मैं different number से initialize कर दूं, है ना, so that value get printed. Now in this case red क्या होगा, in this case red will be 20, ठीक है। what will be blue, ठीक है, blue क्या होगा, it is initialized with 43, it is initialized with 43, so it will give me 43. now if I will print green, ठीक है, so it will take 78, it will take 78. now see one more concept कि suppose I am declaring one more enumeration, ठीक है, enum keyword is there. now I am calling it again हेडलाइट्स, है ना, हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती है ना, वो आपकी कौन सी लाइट्स होती हैं जो यहाँ होती हैं आपके, मैं हेडलाइट्स ही ना, हेडलाइट नहीं होता, आपका ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ठीक है, ट्रैफिक नाम दे रही हूँ, एक नया इनम कीवर्ड क्रिएट कर रही हूँ। नाउ इफ आई एम राइटिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, रेड कलर होता है, हाँ रेड होता है, एंड देन वी हैव ऑरेंज, तो चलिए अलग करते हैं, रेड हो सकता है, वी हैव ग्रीन, है ना, एक बस रेड एंड ग्रीन ले लेते हैं, रेड एंड ग्रीन। सो नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, नाउ आई एम मेकिंग अ वेरिएबल ऑफ किस टाइप का, ट्रैफिक टाइप का, ट्रैफिक वेरिएबल का नाम दिया टी, ठीक है। नाउ वी आर असाइनिंग टी इज इक्वल टू रेड, टी इज इक्वल टू रेड, and when we are trying to print this value, ठीक है, value of t equal to %d, ठीक है, %d। now see will it work or not, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, will it work, हाँ ट्रैफिक लाइट, थैंक यू। so will it work or not, so see error is there, ठीक है। now it is getting confused, क्यों कंफ्यूज हुआ, अब आपने रेड का यूज कलर में भी किया है एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग द रेड एज अ वेरिएबल इन द ट्रैफिक, ठीक है, एक कंफ्यूज हो गया, बिकॉज रेड इज अ कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंटिंग टू वैल्यूज, 20 भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 0, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 0। तो इसने क्या दिया कि रीडिक्लेरेशन ऑफ द एनुमरेटर रेड, आपने रेड को रीडिक्लेयर कर दिया, और रीडिक्लेरेशन ऑफ एनुमरेटर ग्रीन, यू हैव रीडिक्लेयर्ड द एनुमरेटर ग्रीन। सो दिस इज व्हाट वी कैन नॉट डू, है ना, सिंगल प्रोग्राम में नेम इन डिफरेंट इनम्स, इनम इमोशन और वेदर कैन नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द constant, है ना। so here you can see hot and hot we cannot use, it is invalid, it will create ambiguity, so you will get the error message, आपको क्या मिल जाएगा, error message मिलेगा, got it, समझ में आया, आपको क्या मिलेगा, error message। हम इस तरीके से एक ही प्रोग्राम में, in the single program we cannot do this, हम एक ही प्रोग्राम में, मैं यहाँ red 1 लिख दूं या डबल डी कर दूं, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ रेड और इसको कर देती हूँ ग्रीन। सो ये क्या अब वर्क करेगा, ठीक है, क्या ये अब वर्क करेगा, सो यस नाउ इट विल वर्क, गॉट इट, समझ में आया कॉन्सेप्ट कि इस चीज को आप कॉमन नहीं कर सकते, इसको आप कॉमन
नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट ए है, एक कॉन्सेप्ट ए है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ रेड, ठीक है, रेड के बाद मैं लिख रही हूँ व्हाइट, व्हाइट, एंड इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ जीरो से, इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ जीरो से। सो इफ आई एम यूजिंग वैल्यू ऑफ टी, यदि मैं व्हाइट लिखूं तो रिजल्ट क्या आएगा? सी का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो हम ग्रीन लेकर ही चल रहे हैं। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ टी? ठीक है, रन कर लीजिए। सो देखिए, वैल्यू ऑफ व्हाइट इज, वैल्यू ऑफ टी इज जीरो, बिकॉज व्हाइट का वैल्यू आपने क्या दिया है? जीरो। तो क्या रेड का वैल्यू चेंज हुआ होगा? क्या रेड का वैल्यू चेंज है? सो रेड को रन करके देख लो, अगेन इट इज जीरो, मीनिंग इज दैट both are representing the same value, both are representing the same value, कोई impact नहीं। Got it? समझ में आया? So this is all about the enumeration, ठीक है, this is all about the enumeration, this is all about the enumeration। So this is your enum constant, ठीक है, ये आपका क्या था? enum constant, ये आपका था enum constant। आगे चले everyone, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। नाउ वी हैव, ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टाइप, लेकिन आप लोग ने कंफर्मेशन तो दिया नहीं, क्लियर है? थैंक यू शाली मैम। ओके, विशाल सर, श्रेया मैम, मोनू मैम, माधुरी जी एंड विक्की सर। ठीक है, चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्ट्रिंग लिटरल, या इनको आप बोल सकते हो स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? व्हाट इज अ स्ट्रिंग? ठीक है, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ, और यू कैन से इट इज अ अरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अरे ऑफ कैरेक्टर को ही स्ट्रिंग बोलते हैं, ये आपको क्लियर है। इन सी प्रोग्रामिंग हाउ वी डिक्लेयर, ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग हाउ वी क्रिएट द स्ट्रिंग। तो देखिए, जब आप कैरेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे थे, कैरेक्टर कांस्टेंट हम लिखते हैं सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट में, बट व्हेन वी वांट टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग कांस्टेंट, इट शुड बी रिटन विद इन द डबल कोट्स। ये कहाँ लिखेंगे? डबल कोट्स में। सो जब आपने डिक्लेयर किया कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट हैव द लेंथ इज, ठीक है, कितना लेंथ आएगा कैरेक्टर? ए इज इक्वल टू सपोज सिंगल कोट से, सो इट विल टेक ओनली वन बाइट, डिफरेंस समझिएगा, इट विल टेक ओनली वन बाइट, बट व्हेन आई एम डिक्लेयरिंग इट एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स में आपने ए लिख दिया, ठीक है, इफ यू आर राइटिंग, सो नाउ इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ कैरेक्टर। अब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इट इज अ स्ट्रिंग, नॉट अ कैरेक्टर। सो इट विल ऑक्यूपाई द 2 बाइट्स, ठीक है, कितना ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। इन द केस ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट अस्काई कोड स्टोर होता है, बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इन द केस ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? वी हैव अरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होता है। 2 बाइट क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट इट विल स्टोर द वैल्यू ऑफ a and then it will store the termination character. By default C compiler, by default C compiler termination of string को represent करने के लिए null character का use करता है। By default C compiler uses the null character to represent the termination of string. Got it? समझ में आया? ठीक है, so दिस इज व्हाट कैरेक्टर कांस्टेंट, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है? इट इज योर स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। सो thus you can declare the string into the string literal into the double quotes. Any doubt? ठीक है, I am starting another topic. Any doubt?
नो, चले आगे चलते हैं, वेरी गुड। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट इज अबाउट द ऑपरेटर एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। Operator is what? A symbol that operate on the certain data type, like plus. It is a operation operator. ठीक है. This is the multiplication operator. Okay. So operator that operate on the data type. Expression क्या होता है? Expression is combination of variable, constant and operator. ठीक है. Expression क्या होगा? Simply the combination of variable, constant and operator, written according to the syntax of language. ठीक है. Now types of operator, ठीक है, types of operator. First of all we have arithmetic operator, ठीक है, arithmetic operator that perform the arithmetic operation on the data type, ठीक है। और जनरली arithmetic operator क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। I hope you know what is binary. Binary operator means it will operate over the two operand, ठीक है, binary operator that will operate over the two operand, and unary operator that operate on a single operand. जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करे वो यूनरी है, जो टू ऑपरेंड पर काम करे वो बाइनरी है। गॉट इट? समझ में आया? तो परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज यूनरी एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, unary and binary operator. So we have how many arithmetic operator, ठीक है। यदि मैं arithmetic operators की बात करूं इन C प्रोग्रामिंग, आपके पास प्लस है, ठीक है, आपके पास प्लस है, प्लस के बाद माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है एंड यू हैव मॉड्यूलो ऑपरेटर एज वेल। आपके पास मॉड्यूलो ऑपरेटर भी है, बट वी डू नॉट हैव पावर ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज नो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। एनी थिंग जो मुझे रिपीट करना है? आई होप मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर जो रिमाइंडर देता है, जो रिमाइंडर देता है, एंड डिवीजन आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है ना। ये डिफरेंस पता है ना? यदि मैं क्या करूं, इफ आई विल राइट 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10 ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटीजर कैलकुलेशन है, सो इट विल गिव यू 3, ठीक है। ये आपको क्या देगा? 3, बिकॉज 3 से जब 11 को डिवाइड किया तो 3 टाइम जाएगा 9, रिमाइंडर इज 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 3। बट इफ यू राइट 11 मॉड्यूलो 3 देन आंसर मिलेगा 2, ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? 2। क्लियर है? सो यदि मैं इंटीजर अरिथमेटिक देखूं, इंटीजर अरिथमेटिक x and y both are integer and we are applying the addition, subtraction, multiplication, divide and modulo operation, ठीक है, ये explanation है, nothing else. So integer arithmetic का definition क्या होगा? Definition है, ठीक है, when two operands such as x and y are declared integer, an arithmetic operation can be performed on these integer called integer arithmetic and it is always a, जो रिजल्ट होगा वो भी हमेशा एक इंटीजर ही होगा। द रिजल्ट इज ऑल्सो अ इंटीजर, है ना। अब आपका आ जाता है इंटीजर डिवीजन के बारे में स्पेशल डिस्कशन, ठीक है, इंटीजर डिवीजन। नाउ सी, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, हो सकता है आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो। सो इंटीजर डिवीजन क्या बोलते हैं कि देखिए, सपोज हम जैसे डिवाइड कर रहे थे 11 डिवाइडेड बाय 3, तो 11 डिवाइडेड बाय 3 होता कैसे? 3 पॉइंट, फिर 11 को डिवाइड कर रहे हो तो 3 पॉइंट, ये हो जाता आपका 2 एंड 3.6 समथिंग कुछ आता है ना, 3.6 समथिंग 66 कुछ आता। सो जब आप इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करते हो, रिजल्ट आपको हमेशा इंटीजर मिलता है, यू विल गेट इंटीजर रिजल्ट। सो यहाँ ट्रंकेशन परफॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल it perform the truncation. So integer division operation, the result is truncated towards the 0. अच्छा, if both the operand of same, ठीक है, यदि जो ऑपरेंड है वो क्या है,
वो सेम साइन है, जैसे आपने बोला 6/8 या 11/3। सो यहाँ पर जो ऑपरेंड थे इनका साइन क्या था, सिमिलर था, है ना, सिमिलर साइन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो जो ट्रंकेशन होगा, ठीक है, वो ट्रंकेशन परफॉर्म हो जाएगा। लाइक इस केस में भी रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 3, बिकॉज दिस पार्ट इज गोइंग टू बी ट्रंकेट। बट सपोज सपोज करिए कि if both the operand of different size, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, if both the operand of different sign, ठीक है, डिफरेंट साइन, लाइक फर्स्ट है -6 and 8, तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो रिजल्ट में बी 0 और -1, इट डिपेंड्स ऑन द मशीन, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, मशीन पर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? it depends on the negative or positive, ठीक है, the machine if one is negative, machine dependent होगा, the result will be machine dependent। clear है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इस टाइप का उन्होंने न्यूमेरिकल दे चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए बोथ आर, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, वी विल गेट द रिजल्ट, रिजल्ट आपको 3 मिल रहा है। इफ बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, स्टिल यू विल गेट द रिजल्ट, आपको अभी भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, इट इज वर्किंग, ठीक है, इट विल गिव यू अगेन 3, इट विल गिव यू अगेन 3, बट ठीक है, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, देन द रिजल्ट इज मशीन डिपेंडेंट। ये किस पर डिपेंड करता है, मशीन पर डिपेंड करता है। चलो ये घूम रहा है, तब तक हम आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। इंटीजर अरिथमेटिक क्लियर है? इंटीजर अरिथमेटिक में सिर्फ डिवीजन का केस आपको याद रखना है, नथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ डिवीजन। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्वियसली, ठीक है, नाउ इट विल हैव real type number, operand of real type in decimal or exponential notation। floating point result are rounded off, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, ट्रंकेशन हो रहा था। in the integer truncation was there, but in floating point arithmetic round off operation is performed, number of significant digit specified, hence the final value is only an approximation of the correct result। यहाँ round off operation होता है, round off। इट कैन परफॉर्म द मिक्स अरिथमेटिक, लाइक यदि आपने एक नंबर इंटीजर दिया और एक फ्लोट दिया, है ना, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा वो प्रमोट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फ्लोट, इनटू द फ्लोट। मिक्स अरिथमेटिक हम इसको बोल रहे हैं। यहां तक कोई भी डाउट? नाउ वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, now we have relational operator, relational operator used for the comparison, है ना, so like we have less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to and not equal to, and not equal to। see like just like the other language, यदि आप पाइथन की बात करें या जावा की बात करें तो वहां पर आपको ट्रू और फॉल्स रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वहां आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स। बट हियर इफ द वैल्यू इज जीरो, ठीक है, यदि वैल्यू जीरो है देन इट इज कंसिडर एज अ फॉल्स, एंड इफ वैल्यू इज नॉन जीरो, ठीक है, इफ वैल्यू इज नॉन जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट विल बी कंसिडर एज ट्रू। ए सी का कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, ये सी का कॉन्सेप्ट है। यदि वैल्यू आपको कंपैरिजन के बाद 0 मिल रही है तो आपने क्या बोला कि द रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है, जनरली 1 को ट्रू कंसीडर करते हैं, बट रिमेंबर नॉन जीरो नंबर रिप्रेजेंट द ट्रू। ठीक है, नॉन जीरो एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट नॉट ओनली फॉर दिस। ठीक है, मैं अभी आपको लूप्स पढ़ाऊंगी, वाइल पढ़ाऊंगी, इफ पढ़ाऊंगी, तो उसमें और समझ में आएगा आपको। सो नॉन जीरो वैल्यू इट इज द ट्रू वैल्यू एंड जीरो इज फॉल्स। ठीक है, जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, इट इज कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर अगेन इट इज यूज्ड टू डू द compare or evaluate the logical and relational expression. ठीक है, so like we have and operator, or operator and the logical not operator. and ठीक है, and में आप क्या बोलते हो कि suppose I have given x is greater than 5 and x should be less than 10, so the result will be true. ठीक है, result will be considered as true if both are true. ठीक है, यदि दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा, इस केस में एक चीज समझिए, सी कंपाइलर कैसे वर्क करता है, हाउ द सी कंपाइलर वर्क। फर्स्ट इट विल टेस्ट दिस कंडीशन, पहले ये कंडीशन टेस्ट होगा। इफ इट इज ट्रू देन इट विल आल्सो टेस्ट दिस कंडीशन, इट विल आल्सो टेस्ट दिस कंडीशन फॉर द फाइनल रिजल्ट। सो यदि फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, द रिजल्ट इज फॉल्स। And if first is false, then it will not test for the second one, it will answer the false. Because if any one condition is false, if any one condition is false, the result will be false. समझ में आया? Any one condition is false, the result is false. ठीक है, any one condition is false, result is false. Similarly for the logical or ठीक है, if we have two condition, if any one of them is true, if a is greater than b is true, then the result will be true, it will not test for the x is equal to 10. If a is greater than b is false, then it will test for the second condition whether it is true or not. So the whole expression evaluate true if one of them is true, if both of them are true. So this is what your logical or, a logical or है. Not operator, if the result is false, it will give you G1. ठीक है, ये आपको ट्रू देगा, नॉट जीरो को ट्रू एंड नॉट वन विल बी इक्वल टू फॉल्स, है ना। सो it takes single expression evaluate to true if the expression result is false, evaluate to false if the expression value is true. Any doubt? Any doubt? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, bitwise operator are the operator that bits of the data. Like यदि मैंने बोला 5 and 2 परफॉर्म करिए, 5 and 2 परफॉर्म करिए, so first it will convert this data into the binary. 5 will be 101 and it will perform AND operation. 02 कितना होगा, 010. Now the AND operation will be performed at the bit label. So 0 and 1 is 0, 0 and 1 is 0, 0 and 1 0. So result is 0, है ना। Bitwise AND. If bitwise or between 5 and 2, so क्या होगा, 101 and 010. The result is 111. Result क्या हो गया, 111. Got it? समझ में आ रहा है? So bitwise operator क्या होते हैं? These operator are used to testing, complementing, shifting the bit to right to left. Bitwise operator are not useful in the case of float and double. It is only applicable for the integer number, because integer number can be converted into the binary easily. ठीक है, so we have bitwise or, bitwise XOR, shift left, shift right. It is important, ये दो important operator हैं. And bitwise complement, bitwise complement will give you ones complement. ठीक है, bitwise complement जैसे मैं लिख दूं bitwise 5 से पहले कन्वर्ट करेगा 101, विल कॉम्प्लीमेंट इज 010. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करके क्या दे देगा, 010. एनी डाउट टिल नाउ?
Any doubt? XOR. Okay. XOR, basically, ma'am, in XOR operation, the result is result is 0 if the output is sorry input is similar. ठीक है, यदि आप 0 एंड 0 1 एंड 1 दोगे तो रिजल्ट 0 होगा, और 0 0 के लिए रिजल्ट 0 होगा. बट इफ इनपुट इज डिफरेंट, ठीक है, तो रिजल्ट इज 1. इफ इनपुट इज डिफरेंट, रिजल्ट होता है 1. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सॉर ऑपरेशन, ठीक है, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल लर्न द डिजिटल लॉजिक. सो व्हेन वी विल परफॉर्म द एक्सॉर ऑपरेशन, है ना, एक्सॉर ऑपरेशन बिटवीन 5 एंड दिस, ठीक है, 5 एक्सॉर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सॉर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद दिस ऑपरेटर 5 एक्सॉर 2. सो नाउ वैल्यू क्या होगा, 0 1 0 0 1 0. So now the input is different, result is 1. Input is different, result is 1. Input is different, result is 1. Got it? तो ये आपका XOR का आउटपुट बनेगा, XOR का आउटपुट बनेगा. ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, XOR. नाउ सी द टू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर. एनी डाउट नहीं है ना? नाउ वी हैव नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. Left shift and right shift operator, obviously it perform the shift operation by one bit or by the number of bits that you will specify here. ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये डेटा है, दिस इज माय डेटा. क्या लिखा है, 0 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 and 1 1 0 1. So when I will write shift it left, left direction shift है. How many bits position? 3 bit position. So now see what will happen. 3 initial bit are going to be truncated. ठीक है, वो 3 initial bit क्या हो जाएगी, ड्रॉप होगी. And now all these bit are going to shift 3 position. So ये यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं. Now this will be shifted here. This will be shifted under this position. Now it is here. ये कहाँ जाएगा, it will be here. ठीक है, देखिए इस तरीके से मैपिंग कर लेंगे अभी. ठीक है, then we have this 0, then we have this 0, then again ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ. This one will be shifted here, this one will be shifted here, this 0 will be shifted here, और ये 1 यहाँ. ठीक है, कुछ एक ज्यादा मैंने शिफ्ट कर दिया. So like now 3 position are going to be shifted here. तो यहाँ न्यू 3 0 इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ 3 न्यू 0 इंसर्ट हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, ये क्या हुआ, ये 3 तो ट्रंकेट हो गए, ये 3 तो ट्रंकेट हो गए बिकॉज हमने बोला 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करिए, शिफ्ट द 3 बिट टू द लेफ्ट. now 0 is shifted here, 0 is shifted here, 0 is shifted here, 0 is shifted here. 3 bit position हर एक बिट आपकी शिफ्ट होगी. सो दिस विल बी द न्यू रिजल्ट. ठीक है, न्यू रिजल्ट है. सपोज, ठीक है, अब मैं एक शॉर्टकट आपको बता रही हूँ. ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ, बाइनरी में ये 13 था, शिफ्ट होने के बाद दिस इज योर न्यू रिजल्ट. सो जब आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हो, व्हेन यू परफॉर्म द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है, जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इन दैट केस जितने बिट पोजीशन आप शिफ्ट कर रहे हो उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. दैट हाँ, मल्टीप्लिकेशन, दैट विल गिव यू द न्यू रिजल्ट. ठीक है, अभी देखिए करके देख लेते हैं. सो सपोज, है ना, सपोज हमने क्या किया, ए का वैल्यू लिया 13. सो 13 को आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो बाय 3 बिट पोजीशन. what will be the result, what will be the result? So no need to perform all these operation, no need to perform, just calculate 13 into 2 power 3. ठीक है, सिर्फ क्या करिए, 13 into 2 power 3 कैलकुलेट कर दीजिए. दैट इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट आफ्टर शिफ्टिंग द 3 बिट्स. ठीक है, यहाँ मैम डिवीजन में हम
ठीक है, 2 power 3, sorry not 3, 2 power 3, so it will give you 104, it will give you 104, 13 into base is 2, binary calculation है, so multiplied with 8 it will give you 104. So effect of shifting, ठीक है, effect of shifting to the left position, effect of shifting to the left position, effect of shifting a variable to the left by one bit is equivalent to the multiply it by 2. ठीक है, किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट. सो व्हेन वी आर शिफ्टिंग 13 to the 3 bit position, it will be 13 into how many bit position we are shifting, we are shifting 3 bit position, so multiplied with 1 for 1 bit position, multiply with 1 bit for 1 position, multiply with 2 for 1 position. So ये सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनता है, 13 into 2 power 3. ओके, सो आंसर हो जाएगा 104. गॉट इट एवरीवन? रिपीट करना है. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का शॉर्टकट है यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो. यदि एग्जाम में आपसे पूछें कि 3 बिट शिफ्ट करने के बाद व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू, आफ्टर शिफ्टिंग द 3 बिट व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू, प्रोग्राम ही दे दें. सो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बाय 2 power the number of bit position we are shifting. Done? रिपीट करूं, क्लियर है? Done na? Very good. Similarly, what if I want to perform the shift on the right? ठीक है, shift on the right. So now what will happen if I am performing the right shift? 3 bits are going to be the drop. A आपकी drop हो जाएगी. It is going to drop and new 3 bits are going to insert 0 0 0. So this will be the result. ये आपका एक 1 हटा दीजिएगा. This will be your result. ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, न्यू रिजल्ट. ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू डू डायरेक्ट कैलकुलेशन, यदि हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करना हो तो, ठीक है, यदि हमको इसको एक काम करो, इसको हटाने की जगह इट विल बी बेटर कि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, मैं यहाँ 2 लिख दूं. सो 2 बिट यदि आपने शिफ्ट किया, यदि आप 2 बिट शिफ्ट कर रहे हो, सो दिस विल बी योर न्यू रिजल्ट. What if I want to do direct calculation? So 13 should be divided by 2 power 2. 13 किससे डिवाइड कर देंगे, 2 power 2, और 13 should be divided by, ठीक है, 13 should be divided by 4, which is equivalent to the 3 point something. Truncate the portion, integer result is 3. You can see, ठीक है, result कितना बना, 3 बना, result क्या होगा, 3 होगा. So in left shift we multiplied and in right shift we divide. In left shift we multiply and in right shift we will divide. ठीक है, राइट शिफ्ट में आप मल्टीप्लाई करते हो और लेफ्ट शिफ्ट में आप डिवाइड करते हो. चलिए, डन. ओके, नाउ सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो वी विल ट्रंकेट द रिजल्ट. व्हाट इफ आई वांट टू शिफ्ट द नेगेटिव नंबर, ठीक है, यदि कोई नंबर नेगेटिव है, if we want to shift the negative number, if I want to shift the negative number, so negative number के केस में आपको पता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इट इज 1, है ना, ये जो बिट होगी ये आपकी 1 होगी, रिमेनिंग नंबर इज हियर, ये आपका नंबर है, बट दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द साइन, ये साइन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, सो शिफ्टिंग द नेगेटिव नंबर इन राइट शिफ्ट, ठीक है, इन राइट शिफ्ट 0 आर नॉट ऑलवेज इंसर्टेड इन द लेफ्ट. अभी आप क्या कर रहे थे, 0 इंसर्ट कर दे रहे थे जब आप सिंपली एक नंबर लेकर चल रहे थे, देन इट वाज द पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ बिट्स आपने ड्रॉप किया और यहाँ आपने 0 इंसर्ट कर दिया था इन द राइट शिफ्ट. बट इफ द नंबर इज नेगेटिव देन इट विल स्टार्ट विद 1. ठीक है, सो 1 शुड बी इंसर्टेड फॉर एवरी बिट दैट वी विल शिफ्टेड. ठीक है, एक अज्यूम कर लीजिए कि यही एग्जाम्पल है
और इसमें जो ये 1 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ द नंबर, ये आपके साइन को बता रहा है, ये बता रहा है दिस इज द नेगेटिव नंबर. नाउ सपोज आई वांट टू शिफ्ट द 2 बिट्स राइट, ठीक है, राइट में 2 बिट्स शिफ्ट करना है. सो इन दिस केस आप इंसर्ट क्या करोगे, व्हाट विल यू इंसर्ट. सो इन दिस केस जो इंसर्शन होगा, ये 2 बिट्स आपकी ड्रॉप होगी, 0 हेयर, ठीक है, 0 शिफ्ट हुआ, 1 शिफ्ट होगा, देन यू हैव 3 0, 3 0, 1 will also get shifted and new bit that you will insert will be 1. जो नया बिट्स आप इंसर्ट करोगे होगा 1, है ना. सो इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर, यदि आपको नेगेटिव नंबर दिया गया है एंड यदि इन केस in right shift 0 are not always inserted in the left, if the number is negative it will begin with 1 and then 1 is inserted in the left for every bit. कितनी बिट शिफ्ट करी थी, 2 बिट शिफ्ट करी थी. So for every bit I have inserted 1 on the right. In the case of unsigned integer means all number are positive, है ना. unsigned का मतलब क्या होता है, signed means होता है positive and negative and unsigned means only positive, sorry, only positive. So in case of unsigned number we will always insert 0, but in case of signed number, if number is negative then we will insert 1 for the bits that is we have shifted. ठीक है, बताइए यहां तक कोई डाउट. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा, फ्रॉम टुमारो आई विल आल्सो टेक क्लास फॉर द पाइथन. So if you are interested, it will be on YouTube channel. You can watch recording because it will be noon session. So it may be you are not able to attend them. So you can watch the recording on the YouTube. I will share the link. ठीक है. Now see, another operator is called the arithmetic assignment operator. So arithmetic operator are combined with the assignment. Equal to is called the assignment operator. If I will write a equal to 10, what will happen, 10 will assign to the a, है ना. So इसको आप क्या बोलते हो, assignment operator. इसको आप बोलते हो assignment. The value on the left side is called the L value. L value represent the address. L value represent the address. And value on the right side is actually the value of the variable. It is called the R value. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, R value. Now यहाँ L value R value नहीं पढ़ना, यहाँ हमको पढ़ना है assignment. ठीक है, here we want to discuss arithmetic assignment operator. So in arithmetic assignment operator, the assignment operator is combined with the arithmetic operator. Like you are writing a plus equal to 5. So now what is the meaning of this statement? इसका मीनिंग होता है a is equal to a plus 5. Got it? If I am writing b minus or b multiplied equal to 5, then what is the meaning of this statement? Suppose value of b is 10. So the result will be b equal to b multiplied with 5, or we can say b is equal to 50 because b is 10 and multiplied with 5. So इसको आप क्या बोलते हो? It is called the arithmetic assignment. It expression evaluate on the right and assign the value to the variable on the left. Right में expression evaluate होता है, value assign होता है left में. We have this operator as well, left shift assignment and the right shift assignment is also there. Sorry, left shift assignment and right shift assignment. Any doubt? Any doubt? In practice session we will do the practice as well. तो जितने जल्दी cover कर सके अच्छा है. And after completing software engineering, it will be complete in 2 days, next 2 days. So we will start the practice of programming. ठीक है, हम programming भी start कर देंगे. Okay, so now next we have increment and decrement operator. Increment and decrement operator. So like we have here we have 2 type of operator. ठीक है, first is prefix and another is postfix. Prefix, like if I have value of a equal to 10 and I am writing b equal to plus plus a. ठीक है, so it is called the prefix operator. And if I will write b is equal to a plus plus,
it is called the postfix operator. ठीक है. Similarly, if I am writing b is equal to minus minus a, or if I am writing b is equal to a minus minus, so it is prefix, it is postfix. Evaluation कैसे होता है? I hope you know it very well. कि in this case first the increment will be performed. पहले increment होगा, then assignment होगा. First increment, then assignment. So value of b will become 11. Value of b will become 11. Suppose now if this is the case, in this case first the assignment will get performed. पहले assignment होगा, then increment is going to be performed. So it will become 10. पहले b का value 10 होगा, then a will increment it to 11. In this case, first decrement is going to be performed. So value of b will become 9, or value of b will become a is also 9. Now b पहले assignment 10 and a will remain 9. Is it clear? ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर इंपॉर्टेंट. इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. इज इट क्लियर? पहले असाइनमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, या इंक्रीमेंट होके फिर असाइनमेंट. प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. देन वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर. एक्सप्रेशन 1, question mark, expression 2 and expression 3. So I think it is a format of if then वाला format है. If then else. ठीक है. So if and else का format है. So if expression like I is greater than 1, so return the value of I. If it is the condition is false, यदि condition false होगा तो value j return होगा. Is it clear? या मैं कुछ और example देकर बताऊं? क्लियर है ना बाकी सभी लोग? ये सिंपल है कॉन्सेप्ट, फिर भी एक बार बता दीजिए, रिपीट कर सकते हैं. नाउ द लास्ट ऑपरेटर वी हैव कॉमा ऑपरेटर. ठीक है. लास्ट ऑपरेटर वी हैव कॉमा ऑपरेटर. नहीं, वन मोर ऑपरेटर इज देयर. कॉमा ऑपरेटर लाइक इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन. ठीक है. सेपरेशन लाइक इंटीजर j कॉमा k सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है. वी आर सेपरेटिंग द एक्सप्रेशन एज वेल. ठीक है. k इक्वल टू 3 एंड k प्लस 1. So in this case, evaluation will be from left to right. Left to right मतलब पहले क्या calculate होगा? K equal to 3 and then K plus 2. So it will become 5 and 5 is going to assign to J. 5 आपका assign होगा किसको? J को. ठीक है. तो expression जब आप comma operator use करते हैं, when you use the comma operator, evaluation होता है from left to right. ठीक है. evaluation क्या होता है? From left to right. Now one more operator is size of operator. ठीक है. one more operator है size of, that will give you the size of data type. जैसे integer का data type क्या है? 2 byte है ना. वैसे मैंने आपको बताया कि it is compiler dependent. It is compiler dependent. size of operator क्या होता है? जो size of data type क्या होता है? ठीक है. वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है. वो किस पर डिपेंड होता है? कंपाइलर पर डिपेंडेंट होता है ना. इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट. देखिए इस केस में क्या आता है? इंटीजर का साइज. ये तो अभी तक स्टॉप ही नहीं हुआ. चलिए अच्छा, ऐसे डिक्लेयर नहीं किया. ठीक है. सो इट विल रिटर्न द साइज ऑफ, यहाँ देखिए इंटीजर का साइज 4 है. सो इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट. ये क्या होता है? इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट. ओके. इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट. जैसे हम 2 बाइट एज्यूम करते हैं, बट नाउ इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट. यदि आपको कभी एग्जाम में भी हो तो वो गिवन रहेगा
इन एग्जाम दे विल मेंशन इट कि व्हाट इज द साइज, ठीक है, साइज क्या है वो मेंशन कर देंगे। ओके डन, ठीक है। सो ये आपका हुआ साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। Now, next topic is operator precedence and associativity. This is the important diagram जो आपको याद होना चाहिए and important for solving the numerical. ठीक है? So what is precedence and associativity? Actually, what happens? Sometimes we have to do the calculation of the expression like 4 into 3 plus 5 plus 6 multiplied to divide लिख दे 12 divided by 3. If this is the expression, ठीक है, यदि ये expression है, so how will you solve it? ठीक है, how will you solve it? आप कैसे solve करोगे? Obviously you will follow the BODMAS, है ना, आप क्या follow करते हो? BODMAS follow करते हो, है ना, you follow the BODMAS. So yes, this is what called the precedence. Precedence specify which operator should be executed first, है ना। यदि मैं यहाँ पर देखूं तो डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, BODMAS एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। बट so this is what it is representing the precedence, the order in which the operator should get evaluated, है ना, the order in which operator should get evaluated. So the first category has the higher precedence in this table. Like you can see, if we have bracket, so we will first solve the bracket, then if there is a dot operator or arrow operator or postfix increment or decrement, postfix increment has the higher precedence, याद रखिएगा, postfix and then we will evaluate this. यदि you have prefix, prefix have the low weightage than the postfix. So like this and these are the operator. फिर multiplication है, addition subtraction है, left shift right shift है, logical relational operator है. So this precedence sequence should you have to remember, ठीक है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा. Now see, so take the second precedent and so on. Got it? तो ये तो आपका बना precedence. Second thing होता है associativity. Associativity. Now in this example you can see we have two multiplication operator. First A वाला है, second A है. So now if I have to decide which should be executed first, whether I should multiply 4 into 3 or whether I have multiplied 6 into 12, yeah, I will perform division first, so I will get 4 here. Now whether I have to multiply 6 and 4 or whether I have to multiply 4 and 3 first, because both have equal precedence, both have equal precedence. तो हम किसका सहारा लेते हैं? We take the कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है, हम किसका रेफरेंस लेंगे? एसोसिएटिविटी का. सो आई कैन सी कि मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड. So first we will solve 4 into 3, then we will solve 6 into 4. Got it? तो associativity क्या बताता है? The associativity, if operator within the each category has equal precedence, the unary or assignment operator and the ternary operator, हाँ ये तो ठीक है. Associativity, ठीक है, ये आपका क्या बताएगा? In which order we have to एग्जीक्यूट देम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करना है या लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है. सो हियर एक शॉर्टकट आपको बता दूं कि वी हैव दीज ऑपरेटर, दैट इज व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड ये आपका ये हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यूनरी ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, इनडायरेक्शन, एड्रेस ऑफ एंड साइज ऑफ. सिर्फ ये ऑपरेटर हैं जो राइट टू लेफ्ट है. रिमेनिंग ऑल ऑपरेटर आर लेफ्ट टू राइट, ठीक है. तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि राइट टू लेफ्ट कितने हैं? ए वाले, ठीक है, ये आपको टेबल में पीडीएफ में और क्लियर होंगे. सो प्रीफिक्स ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूनरी प्लस माइनस ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो भी यूनरी ऑपरेटर हैं, देन टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑपरेटर. ऑल दीज आर राइट टू लेफ्ट. और एक और राइट टू लेफ्ट क्या बन रहा है आपका? टर्नरी ऑपरेटर जो अभी हमने देखा था.
एंड देन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर. रिमेनिंग आर लेफ्ट टू राइट. ठीक है, रिमेनिंग आपके सभी लेफ्ट टू राइट है. सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटर. हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन प्रैक्टिस सेशन. ठीक है, लेट मी नो एनी डाउट. नो. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. सपोज आई हैव अ मैन फंक्शन. ठीक है, सपोज आई हैव अ मैन फंक्शन. इंटीजर a इक्वल टू 30, b is equal to 40 and x is a variable. ठीक है, now x is equal to, now a is not equal to 10 and b is equal to 50. Then printf x equal to %d, the value of x. What will be the result? क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स. फॉल्स. शालिनी मैम, श्रेया मैम, विशाल सर, विक्की सर, what will be the result? देखिए देखिए, here we have a value is 10, a value is 30 and a value is 30 and b value is 40. ठीक है, now see carefully कि a is not equal to 10, it is true. a is not equal to 10 is true. And ठीक है, and b equal to 50. This is a assignment operator, not a comparison operator. ये असाइनमेंट है, नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर. सो यहाँ आपको मिलेगा b इक्वल टू 50 विच इज असाइनमेंट एंड इट इज अ नॉन जीरो नंबर. ये है एक नॉन जीरो नंबर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. द रिजल्ट इज 1. द रिजल्ट इज 1. गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, असाइनमेंट लिख दिया था. यहाँ हमने असाइनमेंट लिखा था. ठीक है, नहीं मैम, आने लगेगा प्रैक्टिस करोगे तो.
कल तो आप लोग का ऑफ होगा, 15 अगस्त, मतलब हाफ डे मिलेगा आपको। प्लीज ट्राई टू कवर द पेंडिंग वर्क। प्लान कर लीजिए आज ही कैसे आपको कंप्लीट करना है। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 11 एंड y इज 6। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 11 इज नॉट इक्वल टू 5, 11 इज इक्वल टू 5, आंसर होगा 0। ठीक है, 11 इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, ये तो कंपैरिजन है। सो हियर 11 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये होगा आपका फॉल्स, फॉल्स या जीरो, है ना, ये होगा जीरो। और y इज नॉट इक्वल टू 4 या 6 इज नॉट इक्वल टू 4, ये देगा आपको 1। सो जीरो और 1, द रिजल्ट विल बी 1। वेरी गुड, जीरो और 1 और ऑपरेटर है ना। इन द केस ऑफ और, इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू, और के केस में यदि कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू ही होता है। द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करते हैं फर्दर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। रिवाइज देम, ट्राई टू कवर ऑल द पेंडिंग वर्क दैट यू हैव, है ना, जो भी आपके पास पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करिए, सो दैट यू विल बी लाइक जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूटी में कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए, एनी डाउट, एनी डाउट? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।